कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम. So this is a star and delta configuration. Star and delta configuration. First of all, we have to study a star connection. So star connection means what? Star connection means there are three phases: A, B phase and C phase. We have got three phases: A, B and C. So we have to place in star connection like this: A, B and C. A dash, B dash and C dash. All the three phases are at 120 degree. 120 degree. So first thing to make a star connection is we have to place it at 120 degree, right? Same is the case with delta. तो यहाँ पर आपने क्या किया? You have make one point and that is called neutral point in a star by connecting A, B, C. So if we are talking about delta, तो डेल्टा की अगर हम बात करेंगे, सो डेल्टा में हमने क्या करना है, हमने एक ये फेज लिया A एंड दिस इज A डैश. अगर हम इसी फ्रेम की बात करें, यहाँ पे इसी फ्रेम की बात करें, तो इसके पैरेलल फेज में आप कनेक्ट कर दो और दिस विल बी योर C phase. So here you are connecting C and C dash and this is at 120 degree. So you are connecting it here in this phase. So this is B dash and this is B. तो हम ये कह सकते हैं कि this is our phase C, this is our phase A. यहाँ ये साइलेंट हो जाएगा, ये कनेक्शन आपका यहाँ साइलेंट हो जाता है. तो A B C को ही हमने इसी फेज सीक्वेंस में हमने कनेक्ट कर दिया. यही A B C फेज लिया, A B C. तो आपने क्या किया, अब फिर से अगर हम इसको अगर देखना चाहें, सो दिस इज A डैश, B and B dash and this is C and C dash. So A is connected with V dash, so you are connecting it with B dash. C dash is connecting with B, this is B with B, and A dash is being connected with C. So this is your delta connection. So what we do, we write here, this is phase A. So now we can write delta as this, like this. This is our delta. So we write here A, B is silent, C, A dash is silent, and this is B, C dash is silent. So this is our delta and this can be written as a star. This is our star, A, C and B. So this is, if it is balanced, so it will be an equilateral triangle. So now the question is ki from where neutral is present only with a star, it is not visible with delta, but you can consider neutral plus. When you are taking neutral, so neutral you can count like this. And second thing, and that is very important thing, कि they are still at 120 degree. These are at 120 degree, so no doubt they are also at 120 degree. So if it is 60, so this will be framing 120 degree. If we are increasing here this line, so this is 60, so this angle it is making 120 degree. If we are increasing this, so if 60, then again it will be making 120 degree. So 120 degree is also present. So both the connections are in three phase. So this is called three phase star and this is called three phase delta. This is the case. So this is the connection, star delta connection. Now the question is कि how we can represent it mathematically. Mathematically हम कैसे represent करेंगे? So mathematically represent करने के लिए, if we are choosing this phase A as reference phasor, so we can write IA phase will be equal to Im sin omega t, and if we are taking B as this, so IB will be equal to Im sin omega t and plus 120 degree, and if we are taking IC, so Im
sin omega t and minus 120 degree. So this is the phase sequence we can take. IA, Im sin omega t, IB, Im sin omega t plus 120 degree, and IC is Im sin omega t minus 120 degree. Because if it is reference, so anti-clockwise direction, that will be equal to positive theta, and this will as negative theta. So same convention we are taking. We can take the same convention. This is anti-clockwise direction, so positive angle, and this is clockwise direction, so negative angle. So this is making minus 120 degree. And nothing to worry about. This can be written as Im by root 2 angle 120 degree. IB can be written as Im by root 2 angle 120 degree, and IC can be written as Im by root 2 angle minus 120 degree. So from this figure we can conclude that we have got IA is equal to Im by root 2 angle 0 degree, IB is equal to Im by root 2 angle plus 120 degree, and IC is equal to Im by root 2 minus 120 degree. So this is the phase sequence. This is the thing we can write. अब क्वेश्चन ये आता है कि चलिए आपने तो ऐसे काउंट कर लिया, तो क्या हम एक ही डायरेक्शन में काउंट नहीं कर सकते? यस, वी कैन काउंट इट इन वन डायरेक्शन एज वेल. एक डायरेक्शन में भी हम काउंट कर सकते हैं अगर हमारा मन करता है कि नहीं. अब जैसे हमने आप ये सीक्वेंस लिया, तो इस सीक्वेंस को मैं यहाँ डेल्टा, ये आपका मैं रब कर दे रहा हूँ मैं, और इसके बाद मैं बात करता हूँ डेल्टा की. पहले हम स्टार को आपको समझाते. सो दिस इज स्टार. तो अगर हम बात करते हैं इसी को हम लिखें, सो आई एम इज इक्वल टू आई एम बाई रूट 2 एंगल 120 डिग्री, आई बी इज इक्वल टू आई एम बाई रूट 2 एंगल 120 डिग्री, एंड आई सी इज इक्वल टू आई एम बाई रूट 2 माइनस 120 डिग्री. इफ यू वॉन्ट टू राइट in the same fashion, you can write as well IA is equal to, this is the reference, IB आप ये लिख सकते हैं कि this IB will be equal to IM by root 2, IM by root 2 and angle minus 240 degree. आप यहाँ से ही काउंट कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है. You can write it. IC की वैल्यू बात करते हैं, तो IC is equal to IM by root 2. IC क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया आपने, सो माइनस 1/20 डिग्री, माइनस 120 डिग्री. आपका मन करता है कि नहीं सर, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नोट करूंगा, आप कर सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू आई एम बाई रूट 2 एंड प्लस 240 डिग्री आप लिख सकते हैं. तो आप चाहे आप इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज से मेजर कर लो दोनों को, या तो आप क्लॉकवाइज से दोनों को मेजर कर लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. फाइन. इसी फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप IB को आप ये भी लिख सकते हैं कि IB इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री. आप ये भी लिख सकते हो. IC को आप क्या लिख सकते हो, IM साइन ओमेगा टी एंड प्लस 240 डिग्री, ये भी लिख सकते हो. राइट. सो हर कंडीशन में ये आपका सेम रहेगा. अब बात आती है कि सर अगर फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है. मान लिया जाए कि मेरा मन करता है फेज सीक्वेंस चेंज करने का, तो पहले हम स्टार कनेक्शन ही डील करेंगे, उसके बाद हम डेल्टा डील करते हैं. तो पहले हम स्टार की बात करते हैं आपसे. मैंने आपको दिया, मैंने अपने फेज सीक्वेंस को 90 डिग्री पर आपको रोटेट कर दिया. अब हमने जब 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया तो आइए हमारा यहां पर आ गया. IB आपका लीडिंग था, अब मैंने IC को लीडिंग कर दिया कि दिस इज योर IC, यानी कि ये अब आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा एंड नाउ इट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और मैंने IB को यहां लिख दिया, दिस इज IB. अब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द फेज सीक्वेंस. अब आप कैसे लिखोगे, इन तीन फेज के करंट को कैसे डिफाइन करोगे. तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री. आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. कैसे लिखेंगे, IA को लिखेंगे दिस IA इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी. आप अगर चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं सौरभ, सोचने की जरूरत नहीं, पूछ सकते हो आप, कोई इशू नहीं है. सो IC की अगर हम बात करेंगे, सो IC इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी एंड प्लस 120 डिग्री. चूंकि हमारा ये लीडिंग पर आ गया, अब क्या क्वेश्चन आता है
कि सर क्या हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी मेजर कर सकते हैं? यस, यू कैन राइट हियर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री एज वेल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आई बी की अगर हम बात करें, आई बी यहां से यहां तक है, आप लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। अगर आपका मन करता है नहीं सर मैं तो क्लॉकवाइज जाऊंगा, ठीक है आप जाइए क्लॉकवाइज, कौन रोकता है आपको। आई एम साइन ओमेगा टी एंड प्लस 240 डिग्री, सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब कोई भी फेज सीक्वेंस रहेगा, एक को रेफरेंस चूज कीजिए, उसके बाद अपना लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टार के केस की हम जब बात करते हैं तो दिस इज आवर न्यूट्रल, और ये हमारा जो करंट है ये हमारे फेज ए के करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे फेज बी के करंट को फेज सी को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग फेज बी, ये हमारा फेज बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अगर हम सर फेज सीक्वेंस को लैगिंग लीडिंग ना लेकर सेम फेज में मान लें वोल्टेज और करंट को, वोल्टेज और करंट को हम सेम फेज में मान लें, तो लेट वी एंड वोल्टेज एंड करंट आर इज सेम फेज, तो क्या सर वोल्टेज का भी पैटर्न हम यही लिख सकते हैं? यस, यू कैन राइट द सेम पैटर्न, और क्या लिखोगे आप? V इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी वोल्ट, अभी आपका वोल्ट हो जाएगा, दिस विल बी वी एम, सॉरी वी एम। VB को क्या लिखोगे आप? सो VB विल बी इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी एंड प्लस 240 डिग्री। अगर हमें VC को लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? VM साइन ओमेगा टी एंड दिस इज VC यहां पर है, सो दिस इज 120 डिग्री एंड इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी एंड माइनस 240 डिग्री, ये आपका वोल्टेज आ गया। ये कब होगा? जब वोल्टेज और करंट सेम फेज में आते हैं। अब मैंने आपसे कह दिया कि नहीं सौरभ आपका वोल्टेज जो है भाई आपका करंट से 5 एंगल से लीड कर रहा है, तो 5 एंगल से अगर लीड कर रहा है आपका वोल्टेज, तो वोल्टेज की लाइन क्या हो जाएगी? वोल्टेज की लाइन यहां से हो जाएगी, आप फिर यहां से मेजर करोगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 5। इसका मतलब कि आपका करंट अब लैग कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, या आप यहीं से दिखाना चाहते हैं आप यहीं से दिखा सकते हैं। फेज ए फेज बी आपका इससे लीड कर जाएगा और फेज सी आपको इससे लीड जाएगा। ध्यान रखिएगा उसमें, इस कंडीशन में ध्यान सिर्फ आपको इस बात का रखना है कि ये जो फेज ए और फेज बी होंगे, जैसे 120 यहां पर है तो 120 अगर यहां पर, तो यहां तो 180 आ जाएगा, तो 120 और 30 150, यानी कि आपका जो फेज बी होगा वो आपका यहां पर आएगा, यानी कि दिस विल बी फेज बी, ठीक है। और अब इसमें आप 120 जोड़ेंगे, यानी कि 150 में आप 120 जोड़ेंगे तो 270 जब आपका होगा तो आपका तीसरा फेज आएगा। तो तीनों फेज वोल्टेज में भी जो डिफरेंस होनी चाहिए वो भी 120 का ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम फेज लीड लैग नहीं बताते हैं, हम सिर्फ ये बताते हैं कि बोथ द फेज एंड लाइन करंट एंड फेज करंट बोथ आर इन सेम फेज, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों की सेम फेज है। अब उस कंडीशन में आप बताओ कि हमारे को क्या मिलेगा, राइट। अब देखिए अगर हम स्टार कनेक्शन की बात करें, ठीक है, सो स्टार कनेक्शन फिर से मैं पूरा रब कर दे रहा हूं मैं। अगर हम स्टार कनेक्शन की बात करें, सो इन स्टार हमारे को मिलता है, इन स्टार VL इज इक्वल टू √3 V फेज एंड IL इज इक्वल टू I फेज, यानी कि आपका अगर ये स्टार कनेक्शन है, ये आपका यहाँ पर ऐसे है, ये आपका यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज होती है दिस इज फेज वोल्टेज, और यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज होती है दिस इज लाइन वोल्टेज, यानी कि दो फेज टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा आपको लाइन वोल्टेज मिलेगा, और जो दो, ठीक है, ये आपको लाइन वोल्टेज मिलेगा। आपको इसको बोल दें A, C एंड B अगर बोल दें तो ये आपको लाइन वोल्टेज मिलेगा। सो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में हमेशा ये √3 का फर्क होगा, और फेज करंट और लाइन करंट बराबर होंगे, क्योंकि करंट अगर यहाँ से लाइन करंट आपका ये गया और ये आपका यहाँ पर आया और ये आपका यहाँ पर आया IC, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि आपने एमीटर यहाँ लगा दिया, तो एमीटर अगर आप यहाँ लगा, ये तो ओपन आ गया, एमीटर अगर आप यहाँ लगाते हैं तो ये ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया तो आपको इस पॉइंट पर करंट मिला, तो इस पॉइंट पर करंट आप लिखेंगे, अगर KCL लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? IB प्लस IC इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखेंगे? IA इज इक्वल टू माइनस ऑफ IB, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर
मैग्नीट्यूड इसका ले लें हम, दिस इज मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए हमारा लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर सेम हो जाता है। क्वेश्चन आती है सिर्फ आपके फेज वोल्टेज में, तो हम ये देखेंगे कि फेज वोल्टेज हमारा √3 कैसे आता है, कैसे हमारा √3 के मल्टीपल में हमारा फेज वोल्टेज आता है। ठीक है, ये हम देखने की ज़रा बात समझते हैं। तो ये हमने लिया दिस इज़ आवर VA, और ये हमने कहा कि दिस इज़ आवर VB और सॉरी VC, और ये हमारा आ गया VC, ये आपका VC आ गया, VA VB एंड VC, इनके बीच की एंगल 120 डिग्री हो गई। अब आपको VL लेना है, सो VL अगर मान लिया जाए कि VAB लेना है, सो VAB विल बी इक्वल टू VA माइनस VB, ये आपका फेज वोल्टेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। ठीक है, VCA लेना है, सो VCA विल बी इक्वल टू VC माइनस VA, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं VAN माइनस VBN भी कह सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं VCN माइनस VAN भी कह सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में। अगर ABBC और अगर हमारे को VBC लेना है तो हम क्या लिख सकते हैं VB माइनस VC, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VBN माइनस VCN, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन जो निकल के आता है आपके सामने वो ये आता है, ये तो न्यूट्रल के एस्पेक्ट में लिया सर आपने, और ये बार क्यों लगाया, तो हमने बार इससे लगाया कि हमें फेजर सम लेना है, अर्थमेटिक सम नहीं लेना है, फेजर सम लेना है। इनके बीच के मान लिया जाए कि हम VAB आपको कैलकुलेट करना चाहते हैं, कि हमें VAB कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हमारा V एंड BA है। तो VAB कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, VAN माइनस VBN चाहिए, यानी कि VAN आपका पॉजिटिव चाहिए, VBN आपका निगेटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। ठीक है, ये वाला मैं रब कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, VAB नोट कर लिया आपने। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको क्या किया कि इसको हमने रब कर दिया, अब हमारे को मिल गया यहाँ पर, ये हमारा मिल गया VB, तो इसको हमने माइनस VB यानी कि 180 डिग्री पर रोटेट कर लिया। तो जब आप 180 डिग्री पर रोटेट करोगे आप इसको, तो ये इन दोनों के बीच की एंगल कितनी है, इन दोनों के बीच की एंगल 120 थी। अब इसको बीच में लेकर आए तो अब इन दोनों के बीच की एंगल कितनी हो जाएगी, तो आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। अब अगर दोनों फेजर आपके बराबर है और 60 डिग्री पर है, तो इनका फेजर सम कैसा होना चाहिए, तो इनका फेजर सम एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। आप एक ऐसे लेंगे, ठीक, और ये इसको पैरेलल में आप इसको ड्रॉ करेंगे, और ये इसका रिजल्टेंट होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट, यानी कि ये जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट अगर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा तो हमारे को मिलेगा क्या, तो हमारे को मिलेगा VAB, और VAB को हम क्या कहते हैं, तो VL कहते हैं हम। ठीक है, अब अगर बात ये निकल के आई तो आपने कहा कि सर हमारा VA जो है वो VP के बराबर है, और VP की जो वैल्यू है सर वो हमारा VM के बराबर आता है ना, या VM/√3 के बराबर आता है, सॉरी VM/√2 के बराबर आता है। ये हमारा फेज वोल्टेज आ गया। ठीक है, और VB की अगर हम बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू हमारा VM/√2, यानी कि VB भी हमारा इसी के बराबर होगा। सर मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा, बिकॉज आपका सेम फेज है, बैलेंस फेज है। अब बैलेंस 3 फेज सप्लाई किसको बोलेंगे, बैलेंस 3 फेज सप्लाई का मतलब कि फेजेस की मैग्नीट्यूड बराबर है और ऑल द फेजेस आर एट 120 डिग्री, तो उसको बोलेंगे बैलेंस फेज। अगर आपका मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब हो गया, अगर आपका फेज एंगल डिस्टर्ब हो गया 180 के अलावा, तो आप बोलेंगे कि अनबैलेंस फेज। ठीक है, तो हमारा ये बैलेंस फेज है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों आपका 120 डिग्री मेंटेन है और आपका मैग्नीट्यूड मेंटेन है। तो आपने कह दिया कि हमारा सर ये फेज आ गया। अब अगर मेरे को VAB कैलकुलेट करना हो तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमारे पास एक बहुत बढ़िया क्लास 11 से ही फॉर्मूला है कि अगर दो फेज आपके दो वेक्टर आपके 60 डिग्री पर है तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, सो VA स्क्वायर एंड प्लस VB स्क्वायर प्लस 2 VA VB एंड कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो आप कहते हैं कि सर आप इसको कैलकुलेट कर लो आप। अब यहां से यहां तक के बीच की एंगल कितनी होगी दोस्त, तो आप बोलोगे कि सर यहां से यहां तक के बीच की एंगल 30 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज 30 डिग्री। अब हम कैलकुलेट करें क्या, तो VP स्क्वायर एंड दिस इज VP स्क्वायर एंड 2 VP स्क्वायर एंड cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, आई होप कि 1/2 होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 2 and 2 gets cancelled, so this is √3 VP, right? So √3 VP and this VAB is what? This VAB is VL. So we are getting here line voltage is equal to √3 times phase voltage. अब क्वेश्चन आता है कि सर इन दोनों के बीच की एंगल कितनी होगी, तो ये दोनों हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच की जो एंगल होगी वो कितनी होगी, 30 डिग्री। ठीक है, दैट विल बी एट 30 डिग्री। सो फेज एंगल यहां हमारे को मिलेगा VL एंड VP के बीच, वो मिलेगा फेज बिटवीन
VL एंड VP इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं कि सर ठीक है बाकी के फेजेस कैसे होंगे। तो बाकी अगर आपको VAB कैलकुलेट कर लिया आपने, अगर VBC कैलकुलेट करना है तो VB माइनस VC कीजिएगा, वो मैं आपको दिखाता हूं मैं, या पहले नोट कर लो इसको। हो गया, अगर आपने इसको नोट कर लिया तो हमारी वैल्यू भी आ गई। ठीक, अब हम बात करते हैं कि VB और VC के कब फेज VBC यानी कि VBC हमको कैलकुलेट करना है, तो VB माइनस VC, तो VB माइनस VC के लिए क्या करेंगे आप, ये आप लेकर आएंगे यहां पर। ठीक है, जब आप यहां पर लेकर आएंगे तो ये हमारे एंगल कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, और ये हमारे एंगल कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, इनका रिजल्टेंट, अब आप पैरेललोग्राम बनाएंगे अगर, तो आप पैरेललोग्राम यहां लेंगे और ये इसके एक पैरेलल में लाइन खींचेंगे, तो ये यहां पर कितना आ जाएगा। सो दिस विल बी योर VBC एंड VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC, सॉरी VC माइनस VC। सो VBC आपका क्या मिल गया, लाइन वोल्टेज मिल गया। ठीक है, अब यहां से यहां तक की एंगल कितनी हो जाएगी, कितनी 30 डिग्री, और यहां से यहां तक की एंगल कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। फाइन, अब आपको आप कहते हैं कि सर एक और बचा, तो VCA बचा। तो VCA को अगर प्लॉट करना हो तो VC माइनस VA, तो VA को हम लेकर आएंगे, शिफ्ट करेंगे, VA को आपने शिफ्ट किया यहां पर। ठीक, अब यहां पर आप एक पैरेललोग्राम बना दो। जब आप यहां पे एक पैरेललोग्राम बना दोगे, यहां से आप इसको यहां ऐसे मिला दोगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा VCA बन जाएगा, एंड दिस VCA विल बी इक्वल टू VL। यहां पर भी आपकी सेम एंगल बन जाएगी, दिस इज 30 डिग्री। अब आप क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमारा लाइन वोल्टेज के बीच में भी 120 डिग्री है। यस, 120 डिग्री ही होगा। अब आप देखो यहां पर, ये आपका यहां से यहां तक का कितना होगा 90 डिग्री होगा ना, यहां से यहां तक 90 डिग्री, और ये यहां से यहां तक कितना होगा 30 डिग्री होगा, 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से यहां तक ये आपका 30 मिला। ठीक है, और यहां से यहां तक 90, 120 आ गया। सो एवरी फेज आर एट 120 डिग्री, एवरी लाइन एवरी फेज वोल्टेज और करंट आर एट 120 डिग्री। तो चाहे आप फेज वोल्टेज ले लो, चाहे आप लाइन वोल्टेज ले लो, दोनों ही कंडीशन में आपको सेम मिलेगा। अब आपका पावर क्या होगा, सो पावर हम लिखेंगे √3 VL IL cos phi, and this will be equal to 3 VP IP cos phi। और हमारा VL क्या होगा, VL will be equal to √3 VP and IL will be क्या IP। so IL is line current, yes, ठीक है, IL is line current, fine, and IP is phase current, VL is line voltage and VC is phase voltage। so everything we are getting here, so I hope this makes you clear about star connection।